All right, Ajay, appreciate you joining us. Well, Delhi NCR residents woke up to a thick layer of smog as the air quality index, the AQI, remained in the severe category for the third consecutive day with an overall reading of 442. The air quality in 32 stations of Delhi were in the severe category, with the Anand Vihar, Burari and Lajpat Nagar having an AQI of 480. The authorities have imposed GRAP 4 restrictions in a bid to curb worsening pollution levels. Schools will remain closed in Delhi NCR, and offices in Noida are advised to work in the hybrid mode. Arzu Seth, my colleague, joins us live at this point in time to talk more about this. Arzu, there is no point in implementing the GRAP 4 and then stopping it for the pollution levels to come up again and then re-implementing it. If there has to be a more sustainable, a more practical, a more enforceable solution to pollution. Well, yes, Vineet, and in fact, the people here in the national capital are disappointed with the government taking not a much initiative to combat with the pollution. Today, also, if we talk about the AQI is in the severe category. In the past few days, we have seen a little bit improvement in the air quality, but once again, the pollution have taken a U-turn and have come back to the national capital. As far as these several places is concerned in the national capital is being recorded in the severe category. Right now, I am at the India Gate and would like to show my viewers the visuals here at the India Gate. You can see a thick layer of smog that has engulfed the very national capital. The visibility has gone very down. If we talk about the Parliament, Safdarjung, the visibility was around 50 meters, and here also you can see there is a line of haziness in the sky. The sky is not clear. In fact, the sun has risen up. After that also the visibility is so low. Also, if we talk about the AQI here, the overall AQI in the national capital is around 442, or if we talk about at the several places, and I would like to show you the data here. As you can see also at Anand Vihar it's 481, at Ashok Vihar it's 459, at Ayanagar it's 412, at Bhavana it's 461, at Burari it's 481, at Chandni Chowk it's 375. So there you can see at several places, and all the places in the national capital are in the red zone. So the situation in the national capital is very alarming. As you can see, at the most of the places, the AQI is above 450 or near 450, which comes under the severe category. In fact, when we talk to the health experts, they also recommend the people to avoid the outdoor activity in such a conditions. Not only pollution, but the other thing is the cold wave condition that are prevailing in entire North India, and in the coming 5 days also, these such cold wave conditions are going to increase. So at the same time, when the pollution is on rise, the people have to face the two challenges, that is the cold wave and the pollution situation here in the national capital. Yes, Vineet. All right, Rohit Kaushik, my colleague, also joins us on the broadcast. Rohit, आप गुरुग्राम में अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल। क्या स्थिति है गुरुग्राम में इस वक्त? दिल्ली में तो ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं, हाइब्रिड मोड पर ऑफिसेस चलें, ये भी हिदायत दी जा रही है। हरियाणा की सरकार का क्या परिश्रम रहा है प्रदूषण से लड़ने के लिए? जी देखिए, कहीं ना कहीं पूरे जो प्रदूषण है उसने पूरे गुरुग्राम शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। एक बार फिर से जो AQI लेवल है वो 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब तेज हवाएं थी तो प्रदूषण छटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हवाएं थमी वैसे ही प्रदूषण का स्तर फिर से गहरा गया और अब ये लोगों के जीवन का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। अगर बात करें गुरुग्राम के DC की, तो उन्होंने इसके नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, डेमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से डीजल की जो गाड़ियां हैं, डीजल के जो ऑटो हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं गुरुग्राम के DC ने यह आदेश दिया कि गुरुग्राम में जो डीजल के ऑटो है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त तो गुरुग्राम में डीजल के ऑटो को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अब जो प्रशासन था उसने बीच में जैसे ही प्रदूषण का स्तर जो कम हुआ तो चैन की सांस ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तो प्रशासन के
सर पर भी जिम्मेदारी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं लोगों के लिए भी तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। जो पेशेंट्स की संख्या है वो लगातार हॉस्पिटल्स में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल में रोजाना जब प्रदूषण का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर चुका था तो रोजाना कहीं ना कहीं मरीज जो थे वो 2000 से ऊपर आ रहे थे हॉस्पिटल में। इसके बाद फिर से अब जो सर्दी का कहर है, ऊपर से प्रदूषण भी कहर बढ़ हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इसके लिए क्या कुछ काम करता है, क्योंकि कई चीजों पर प्रतिबंध है। बच्चों के स्कूल्स को भी हाइब्रिड कर दिया गया है और जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है उनके लिए भी अब शायद वर्क फ्रॉम होम का जो फैसला है वो भी आ सकता है। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनके लिए टाइमिंग्स में भी बदलाव किए गए हैं। तो साफ तौर से जिला प्रशासन कई चीजों पर प्रतिबंध लगा रहा है। और बात करें कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो बाहरी वाहन है, जो हैवी जो व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाई गई है। पुलिस जो है वो चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं इन चीजों से जो प्रदूषण है वो कम होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जब हवा जो है वो तेज चलती है तो हवा चलने से कहीं ना कहीं प्रदूषण छटता है, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो फिर से ही गुरुग्राम शहर जो है वो प्रदूषण के आगोश में नजर आता है। हालांकि इस वक्त जो गुरुग्राम में ठंड का कहर, ऊपर से प्रदूषण का कहर, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है, और हाई बीपी और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए तो ये प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आ जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें छोटे बच्चों की, तो उनके लिए ये आज जिस तरीके की बीमारियां जो प्रदूषण से फैल रही हैं, ये आने वाले समय में और भी ज्यादा मुसीबत लोगों के लिए ला सकती है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को चेतावनी दे रहा है, अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले या फिर मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड करें, क्योंकि बढ़ती हुई ठंड, ऊपर से बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अनिल चौधरी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद एट दिस पॉइंट इन टाइम। अनिल, गाजियाबाद में क्या अभी आलम है? प्रदूषण का जो स्तर है वो फिर से सीवियर कैटेगरी में जा चुका है। ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। हर तरीके से नुकसान होता है प्रदूषण की वजह से। अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, क्योंकि डीजल की गाड़ियाँ, ट्रक्स और काफ़ी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो रोज़मर्रा का जो एक बिजनेस एटमॉस्फेयर है वो भी ख़राब होता है। देखिए, ये मुख्य कारण भी ये भी माना जा सकता है कि जो हवा है वो हवा की गति जो है वाकई ही कल से कम हुई है। जो हवाएं हैं बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं गाजियाबाद में, और बीती रात से लगातार पोल्यूशन का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 435 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंदिरापुरम का पहुंचा हुआ है और 432 जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है वहां पर पहुंचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो हालात हैं वो एक बार फिर से बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई मेजर स्टेप उठाने की जरूरत है। हालांकि ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे ही 400 के पार AQI पहुंचा तो ग्रैप 4 के नियम जब दिल्ली NCR में लागू किए गए तो गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा भी कई मेजर स्टेप उठाए गए हैं। चाहे वो स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया, क्लासेस के जो समय है उसमें बदलाव किए गए, चाहे वो बात की जाए हाइब्रिड मोड पर जो क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक की जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड मोड पर कर दी गई हैं। और साथ ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर लगातार अब पुलिस चेक कर रही है। ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है जो वाहन ग्रैप 4 के नियम को सही से फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रैप 4 के नियम जब लागू होते हैं तो BS4 के BS4 डीजल वाहनों को प्रतिबंध किया जाता है। साथ ही BS3 के पेट्रोल वाहनों को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया जाता है। उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर लिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक एक्शन प्लान और तैयार किया गया है गाजियाबाद में पोल्यूशन को रोकने के लिए। जो काफी तादाद में फैक्ट्रियां और कंपनियां जो चल रही थी, जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजल के जो जनरेटर थे उन पर पूर्ण तरीके से गाजियाबाद में
रोक फिलहाल लगा दी गई है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन लगा दिए गए हैं। अब देखना यही होगा आखिरकार इस दमघोटू हवा से क्या इन सभी चीजों से राहत मिल पाएगी, या आम जनता गाजियाबाद की इस तरीके से ही दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर रहेगी। कई ऐसे स्टेप जरूर उठा लिए गए हैं, पर ये सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि 400 के पार आप समझ सकते हैं। यदि 400 के पार पहुंचता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में उनकी तरफ से कहा गया है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, और बच्चे और बुजुर्ग तो विशेषकर जरूरी ना हो तो घर से ही ना ही निकलें। हालांकि बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे थे, उनके लिए तो स्टेप उठा लिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस उनकी कर दी गई है, नर्सरी से 5th तक तो ऑनलाइन क्लासेस की गई है, बाकी हाइब्रिड मोड पर चलाई गई हैं। अब देखेंगे आखिरकार किस तरीके का असर जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलता है। फिलहाल जैसे कि कहा जाता है कि सड़कों पर भी छिड़काव होना चाहिए। जैसे कि मैं अब सड़कों पर निकला हूं तो मुझे कोई भी छिड़काव उस तरीके का नहीं दिखा है, क्योंकि ग्रैब 4 के जब नियम लागू होते हैं तो उसके बाद तमाम ऐसे बदलाव देखे जाते हैं जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही मैं तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आज घनी धुंध सी आपको सड़कों पर छाई हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़क है, और जो आप देखेंगे दूर से आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगी। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है, लोगों की सांसों पर संकट बनाया है। अब जरूरत है तो इस ओर आम जनता को भी अपनी सहभागिता दिखाने की, और इस ओर ध्यान देने की आम जनता को भी तमाम स्टेप अब उठाने होंगे, क्योंकि अधिकारी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर आम जनता को भी अवेयर होना होगा आखिरकार किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो घर में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, लोगों को वो रोक देने चाहिए, और जिससे धूल उड़ रही हो उस काम को भी रोकना चाहिए। ये तमाम वो मेजर स्टेप्स हैं जो आम जनता को भी अपनी जिंदगी में लाने चाहिए। लोग घर से बाहर निकले तो मास्क पहन लें। ये वो चीजें हैं जो इस खतरनाक हवा से आपको थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। जी चलिए, इस जानकारी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।